ہسپتال کی مخصوص بو اور مشینوں کی آوازوں نے میرے حواس گم کر دیے تھے، لیکن میرا دل ایک انجانی خوشی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ آج میں پہلی بار ماں بننے والی تھی۔ اس پل کا میں نے کتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ میری شادی کو پورے 3 سال ہونے والے تھے اور اب جا کے یہ خوشی میرے حصے میں آئی تھی۔ یہ میرا پہلا بچہ تھا اور سچی بات تو یہ تھی کہ جتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ میں خوش تھی۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد درد کی لہریں ایسی اٹھتیں جیسے کوئی میرے جسم کے ہر جوڑ کو الگ کر رہا ہو۔ میرے سامنے دیوار پہ لگی گھڑی کی سوئی اپنی جگہ رک گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ ایک ایک لمحہ مجھ پہ بھاری تھا۔ میں بار بار لیبر روم کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ جب بھی دروازہ کھلتا تو مجھے باہر کھڑی اپنی ماں اور ساس کا چہرہ نظر آتا اور تھوڑا حوصلہ ہوتا کہ باہر میرے اپنے کھڑے ہیں جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر جیسے میری آدھی تکلیف ختم ہو گئی۔ وہ میرے سرہانے آ بیٹھا اور نہایت پیار سے میرے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو وہ فوراً ہی مجھے سمجھانے لگا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں باہر ہی کھڑا ہوں، تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوں، ممی اور اماں بھی موجود ہیں، بس تھوڑی سی ہمت اور دکھاؤ۔ وہ میری امی کو اماں اور اپنی ماں کو ممی کہتا تھا۔ اس کی بات پہ میں بس سر ہلا کے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت مجھے جو فکر نظر آ رہی تھی اس نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ وہ بار بار نرس سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں، سب کچھ نارمل ہے نا؟ اور میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ مجھے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا جو اس مشکل گھڑی میں ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ پھر اسے ڈاکٹر کو ایک سائڈ پہ ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں تھوڑا دور جا کے باتیں کرنے لگے جہاں سے ان کی آواز تو مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، لیکن میں انہیں صاف دیکھ سکتی تھی۔ میرا شوہر ڈاکٹر کو بہت غور سے کچھ سمجھا رہا تھا اور ڈاکٹر بھی سر ہلا ہلا کے اس کی بات سن رہی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ میری حالت کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا ڈلیوری کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کے مسکرائی اور پھر میرے پاس آئی۔ اسے بڑی محبت بھرے لہجے میں میرا ہاتھ تھام اور کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، بس کچھ دیر کی بات ہے، پھر تمہاری گود میں تمہارا بچہ ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے مجھے یقین آ گیا کہ میرے شوہر نے اس سے مجھے تسلی دینے کا کہا ہے۔ پھر میرے شوہر نے نرس کے ہاتھ پہ کچھ پیسے رکھے اور کہنے لگا، میری بیوی کا اچھے طریقے سے خیال رکھے گا، میں باہر ہی ہوں، اور وہ باہر نکل گیا۔ نرس مجھے مسکرا کے کہنے لگی، بہت قسمت والی ہیں آپ جو ایسا شوہر ملا ہے، ورنہ آدمی تو بیوی کو لیبر روم میں ڈال کے باہر مزے اور سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا اندر ان کی عورت پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن آپ کا شوہر تو ہر 2 منٹ بعد آپ کی خبر لے رہا ہے۔ اس کے بعد میرے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مسلسل میرا پسینہ پونچھ رہی تھی، میرا دل بہلا رہی تھی، جبکہ میرا شوہر بار بار لیبر روم کے چکر کاٹ رہا تھا، کبھی اندر آتا کبھی باہر جاتا۔ اس کی یہ بے چینی دیکھ کے مجھے اس پہ اتنا پیار آ رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میں اسے بتا سکوں کہ اس کا یہاں ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا اور کچھ نہ کچھ بات کرتا۔ مجھے تو بس یہی لگ رہا تھا کہ وہ بس جلد سے جلد مجھے اس درد سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص میرا بہت خیال رکھ رہا تھا اور ڈاکٹر تو جیسے خاص طور پہ مجھ پہ توجہ دے رہی تھی۔ اسے نرس کو کچھ خاص ہدایات دیں اور پھر میرے شوہر کی طرف دیکھ کے ایک عجیب سا اطمینان بخش اشارہ کیا۔ میرا شوہر بھی ایک لمبی سانس لے کے باہر چلا گیا جیسے اسے اطمینان ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ڈاکٹر اور شوہر کے درمیان خسر پھسر ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ بس خیریت سے یہ مرحلہ گزر جائے۔ ایک دم شدید تکلیف کے بعد اچانک کمرے میں ایک ننھی سی جان کی پہلی چیخ گونجی۔ وہ آواز سنتے ہی میرے سارے دکھ، سارا درد اور وہ گھنٹوں کی اذیت جیسے پل بھر میں ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، مبارک ہو، بہت پیارا بیٹا ہوا ہے۔ نرس نے فوراً بچے کو صاف کیا اور سفید تولیے میں لپیٹ کے میرے سینے سے لگا دیا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے کائنات کی تمام خوشیاں میری جھولی میں آ گری ہیں۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے بیٹے کے سرخ و سفید گالوں کو چوما۔ باہر جیسے ہی یہ خبر پہنچی، ہسپتال کا وہ کوریڈور خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا شوہر، ممی اور اماں سب اندر داخل ہوئے۔ میرے شوہر کے چہرے پر جو فاتحانہ مسکراہٹ تھی وہ دیکھنے لائق تھی۔ اسے فوراً آگے بڑھ کے پہلے میرے سر پہ بوسہ دیا اور پھر بچے کو گود میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک غیر معمولی تھی۔
उसे जेब से नोटों की गड्डी निकाली और वहीं लेबर रूम में मौजूद नर्सों और वार्ड बॉय पे निछावर करने लगा। हर तरफ मिठाई के डिब्बे खुल गए। वो पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी सल्तनत मिल गई हो। वो बार बार डॉक्टर के पास जाता, उसका शुक्रिया अदा करता। मैंने देखा कि उसने एक बार फिर डॉक्टर के हाथ में चुपके से कुछ पैसे रखे, लेकिन मैंने यही सोचा कि ये खुशी में दिया जाने वाला इनाम या मिठाई है। मेरी सास, जिन्हें मैं मम्मी कहती थी, वो तो जैसे खुशी से निहाल थी। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, शुक्र है मालिक का जिसने मेरा घर खुशियों से भर दिया। मेरी अपनी माँ की आंखों में भी शुक्राने के आंसू थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और उस दिन को देखने के लिए उन्होंने भी बहुत इंतज़ार किया था। अस्पताल से छुट्टी का वक्त आया तो अम्मा ने बहुत प्यार और नरमी से मेरी सास से पूछा, अगर आप कहो तो मैं इसे कुछ दिन अपने घर ले जाऊं, वहाँ इसका ख्याल रखना मेरे लिए आसान होगा। लेकिन मम्मी ने फ़ौरन प्यार से उनका हाथ थाम लिया और कहने लगी, अरे नहीं बहन जी, ये मेरी बेटी है और ये पोता मेरा वारिस। मैं इसका इतना ख्याल रखूंगी कि आप देखती रह जाएंगी। घर में माशाल्लाह सब सहूलतें हैं, नौकर चाकर हैं, मैं खुद इसके सिरहाने बैठूंगी। आप फिक्र ना करें। मम्मी की इस मोहब्बत भरी ज़िद के आगे अम्मा भी मुस्कुरा के चुप हो गईं। वैसे भी उन्हें यकीन था कि मेरी सास अपना कहा पूरा करेंगी। वो मुझसे वाकई में बहुत मोहब्बत करती थी और शादी के शुरू से लेकर अब तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। हमारे घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे शौहर असद का अपना कारोबार था, घर में नौकर चाकर थे। मेरे मुंह से निकली हुई हर बात पूरी हो जाया करती थी और सबसे बढ़ के असद मुझसे दीवाना वार मोहब्बत करते थे। हमारी लव मैरिज थी और इसीलिए उन्होंने कभी मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी। और अब तो मैंने उन्हें बेटे जैसी खुशी दी तो वो मुझे सर आंखों पे बिठा रहे थे। और कुछ ऐसा ही हाल मेरी सास का भी था। इसीलिए मैंने खुद अपनी माँ से कहा कि अम्मा परेशान ना हो, मम्मी है ना, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरी माँ ये सुन के और भी मुतमईन हो गई थी। फिर अम्मा ड्राइवर के साथ अपने घर चली गईं और जब हम घर पहुँचे तो वहाँ का मंजर ही बदला हुआ था। पूरे घर को रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था। गेट पर ही ढोल वाले खड़े थे, साथ ही सदके के बकरों का भी इंतज़ाम था। मम्मी ने मेरी नज़र उतारी और मुझे सहारा दे के मेरे कमरे तक ले गईं। मेरा कमरा भी पूरी तरह सजा हुआ था। मेरे बच्चे का सारा सामान भी पूरी तरह सेट कर दिया गया था। झूले से लेकर ज़रूरत की हर चीज़ मेरे कमरे में मौजूद थी और ये सब देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं वो खुश नसीब लड़की थी जिसे अपने ससुराल में बेपनाह मोहब्बत मिली थी। अगले कई दिन तक मेरा ऐसे ख्याल रखा गया जैसे मैं कोई नाजुक कांच की गुड़िया हूँ। मम्मी खुद किचन में मेरे लिए यखनी तैयार करती, मुझे वक्त पे दवाई देती, बच्चे को भी संभाल लेती। बल्कि ज़्यादातर रात के वक्त तो मेरा नन्हा शहजादा मम्मी के कमरे में ही होता था। वो मुझे कहती, तुम आराम से सो जाओ, मैं इसे संभाल लूँगी। मैं भी दवाएं खा रही थी, इसलिए बच्चा उनके हवाले करके खुद पुरसकून नींद सो जाती। मेरा शौहर भी दफ्तर से जल्द घर आ जाता और घंटों मेरे पास बैठा रहता। वो बार बार मुझसे पूछता, अब तबीयत कैसी है, ज़ख्म भर रहे हैं ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं। मेरी ज़रा सी सिसकी पे उसकी जान निकल जाती। मैं उसकी इस हद से बढ़ी हुई फ़िक्र को अपनी खुशनसीबी समझती थी। मैं अक्सर रात को बिस्तर पे लेटी सोचती कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली जो बेटियों से बढ़ के प्यार करती है और ऐसा शौहर मिला जो मेरी पल पल की खबर रखता है। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। जब मेरे लिए ये रिश्ता आया था उस वक्त मेरे कुछ ख़ानदान वालों ने मेरे शौहर असद के बारे में अजीबो-गरीब बातें की थी और कहा था कितने अमीर लोगों में बेटी नहीं ब्याहनी चाहिए, ज़्यादातर अमीर लड़के बिगड़े हुए और अयाश होते हैं। मगर मैं असद से बहुत मोहब्बत करती थी और मेरी यही मोहब्बत देखकर मेरे घर वाले रिश्ता करने को तैयार हो गए थे। वैसे भी मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी थी, इसलिए अम्मा और बाबा ने मेरी खुशी को दुनिया की बातों पर ज़्यादा फोकियत दी थी। मेरी शादी से 2 दिन पहले जब मेहंदी की तकरीब हुई तो मेरी बड़ी फुप्पो कहने लगी कि ये सब 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये जो सास इतने चाव से तुम्हें ब्याह के लेके जा रही है ना, ये सिर्फ बेटे की खातिर दिखावा कर रही है। ससुराल जाओगी तो ये तुम्हें अपनी असल शक्ल दिखाएंगे। ये इतने करोड़पति लोग हैं और ये कभी ना कभी तुम्हें इस बात का ताना ज़रूर देंगे। इसीलिए तो मैंने भाई साहब से कहा था कि इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी ना करें। इंसान को रिश्ता अपनी हैसियत के मुताबिक बनाना चाहिए, लेकिन अब तुम यूनिवर्सिटी में इतना अमीर लड़का फांस लिया तो भाई साहब भी बेचारे क्या करते। मेरी पप्पो ने बातों बातों में ना सिर्फ मुझ पर तंज किया बल्कि असद के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ भी मुझे भड़काने की कोशिश की। लेकिन मैंने उनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि मेरा भरोसा असद पे बहुत मजबूत था।
फिर जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो मेरी सास का मिजाज ना सिर्फ बहुत अच्छा था बल्कि कहीं ना कहीं उनकी पसंद नापसंद बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। इसलिए हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई और शादी को साल गुजरने के बावजूद भी हमारे दरमियान कोई भी अनबन ना हुई। मेरे सारे खदशात ख़त्म हो गए और ख़ानदान वालों को ये बात हजम ना हुई। हर कोई मुझसे बातों बातों में पूछता था कि तुम्हारी सास तुम्हें ताने तो देती होगी, लेकिन मैं मुस्कुरा के कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे अपनी सगी बेटी समझती हैं और असद तो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखने के साथ साथ मेरी इज्जत भी बहुत करते हैं। मुझे लगता था कि मेरी किस्मत का सितारा सबसे बुलंद है और जिन अयाशियों या बुराइयों का जिक्र मेरी फूफो ने किया था, असद उनसे कोसों दूर है। वो तो एक सुलझा हुआ और घरेलू इंसान था जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ मेरे और अपने काम के गिर्द घूमती थी। मैं अक्सर सोचती कि लोग कितने हासिद होते हैं जो किसी की हंसती बसती ज़िंदगी देख के जहर उगलने लगते हैं। लेकिन शादी के चंद ही महीनों बाद जब मैंने एक दिन बहुत लाड से माँ बनने की ख्वाहिश का इजहार किया तो असद का रद्द-ए-अमल मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। वो कहने लगे उन्हें अभी बच्चे की इतनी जल्दी नहीं। वो अपने और मेरे बीच किसी तीसरे वजूद को नहीं चाहते। उन्हें अभी मेरे साथ कुछ और वक्त अकेले गुजारना है। उनकी बात सुन के मैं खामोश तो हो गई लेकिन मेरे अंदर एक कसक सी बाकी रह गई। इस तरह हंसते खेलते हमारी शादी को 2 साल गुजर गए और उन 2 सालों में हर गुज़रते दिन के साथ असद की मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। वो बार बार मेरे नज़दीक आते और जब भी गुर्बत का वक्त आता तो खलवत के उन ख़ास लम्हात में वो पूरी तरह मुझे अपने काबू में कर लेते और टूट के मुझ पे अपनी मोहब्बत बरसाते। हमारे दरमियान एक बहुत खूबसूरत और गहरा रिश्ता था, लेकिन जब भी मैं औलाद की बात छेड़ती तो वो कुछ झिझकने लगते और हमेशा यही कहते कि उन्हें अभी कुछ साल और चाहिए, अभी हमें एक दूसरे को और ज़्यादा जीना है। फिर धीरे धीरे ख़ानदान वाले और लोग भी मुझसे इस बारे में पूछने लगे कि अब तो 2 साल हो गए हैं, कोई खुशखबरी कब सुना रही हो। इन बातों से मैं जहनी दबाव का शिकार होने लगी। एक दिन मैंने बहुत उदास होकर रोते हुए असद से कहा कि असद, अब मुझे बच्चा चाहिए, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरी ममता तड़पती है। असद ने मुझे अपने करीब किया, मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और बड़ी संजीदगी से कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर मुझसे वादा करो कि बच्चा होने के बाद तुम मुझसे दूर नहीं होगी। मैं तुम्हारे और अपने बीच किसी और को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो हमारा अपना बच्चा ही क्यों ना हो। ये सुन के मैं बेख्तियार मुस्कुरा दी और कहा, असद आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो बच्चा हम दोनों का होगा और बच्चे के आने के बाद तो मियाँ बीवी की मोहब्बत और भी गहरी हो जाती है। असद कहते, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे साथ बिताए वक्त में मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती। अब बस यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरी तरजीह हमेशा तुम ही रहोगी। मैंने हंसते हुए उनका हाथ थामा और कहा, ठीक है जनाब, उस वक्त हम बच्चा मम्मी के हवाले कर देंगे और आपको पूरा वक्त दूंगी। मेरी इस बात पर असद राज़ी हो गए और फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि चंद ही दिनों में मैं हामला हो गई, जिसकी खुशी मैंने और मम्मी ने तो बहुत मनाई, लेकिन असद के चेहरे पे खुशी के साथ साथ एक अजीब सी फिक्र भी थी जो उस वक्त मेरी समझ से बालातर थी। जैसे जैसे दिन गुजरे और मेरा 7वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने मेरी हालत के ज़ेरे असर साफ और सख्ती से यह हिदायत की कि अब आपको अपने शौहर से दूर रहना होगा। उसे हम दोनों को हमारे ताल्लुक़ के लिए मना कर दिया था और यही बात जब मैंने असद को बताई तो वो एकदम नाराज़ हो गए। कहने लगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी तुम बच्चे के बारे में सोचो। अब देखो ये बच्चा अभी से हम दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर रहा है। ये सुनना था कि मैं हैरान रह गई और कहा, असद कैसी बातें हैं ये? मेरी सेहत की वजह से डॉक्टर ने मना किया है। आप तो पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं कि कुछ पेचीदगियों की वजह से डॉक्टर ने ऐसा कहा होगा। मेरी नाराज़गी देख के असद का लहजा थोड़ा नरम हुआ और वो कहने लगे, मेरी जान तुमसे दूर रहना ही तो मुश्किल लगता है। तो मेरे लिए इतनी कशिश रखती हो कि मैं खुद पे काबू नहीं पा सकता। फिर वो मुझे अपनी बाहों में भरते हुए मोहब्बत जताने लगे तो मेरा मिजाज भी ठीक हो गया। मगर उस दिन के बाद से वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए। वो रात को सारा वक्त कमरे में यहाँ से वहाँ टहलते रहते और बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते। मैं जब उन्हें याद दिलाती और ख़ुद से दूर करती तो उनका मिजाज बिगड़ने लगता। वो झुंझुला के लाउंज में जाके बैठ जाते और पूरी आवाज़ में टीवी खोल देते ताकि अपनी बेचैनी ख़त्म कर सकें। तो कभी किसी कोने में मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाते। अक्सर उनकी रातें अब जागते हुए गुजर रही थीं और कभी कभी मुझे इस बात पे हंसी आती तो कभी गुस्सा कि एक पढ़ा लिखा मर्द महज कुछ दिनों
दिनों के लिए खुद पे काबू क्यों नहीं रख सकता। असद का ये बदला हुआ रवैया देख के मम्मी भी कभी कभी परेशान हो जाती कि असद को क्या हुआ है, लेकिन मैं शर्म के मारे उन्हें कुछ ना बता पाती और बस यही कहती कि शायद काम का बोझ ज़्यादा है। असद की नज़रें अब अक्सर मेरे जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लेती रहती। वो अक्सर डॉक्टर से फ़ोन पे बातें करते पाए जाते। मैं समझती वो शायद मेरी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद है। इसी तरह मेरा 7वां महीना ख़त्म हुआ और जब 8वां शुरू हुआ तो असद ने अपनी रविश ही बदल ली। वो काम के बहाने अब ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगे और अक्सर तो ऐसा होता कि रात को दोस्तों के साथ पार्टी या किसी मीटिंग का बहाना बना के घर वापस ही न लौटते। जब इस बात पे मैंने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और उनसे गिला किया तो वो बड़ी बेरुखी से कहने लगे कि तुम ही बताओ, मैं घर आके क्या करूं? तुम तो मुझे अपने नज़दीक भी नहीं आने देती हो। मेरे लिए तो ये घर अब काटने को दौड़ता है, इसीलिए मैं दोस्तों में दिल लगा लेता हूँ। असद का ये शिकवा सुनकर मैं एकदम खामोश हो जाती। मुझे अपनी ममता और अपनी सेहत की फ़िक्र थी, लेकिन असद को सिर्फ अपनी महरूमी नज़र आ रही थी। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि सिर्फ कुछ वक्त की बात है, लेकिन उनके चेहरे की बेजारी ख़त्म नहीं हुई। फिर मैंने सोच के खुद को तसल्ली दे दी कि बस ये आखिरी महीना है, जैसे ही अल्लाह खैर से डिलीवरी करवा देगा और बच्चा हो जाएगा तो मैं असद के सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दूंगी और उन्हें वो तमाम वक्त और तवज्जो दूंगी जिसके लिए वो तड़प रहे हैं। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये बेसब्री उन्हें किस हद तक ले जा चुकी है। मैं तो बस उनकी वापसी की दुआएं मांगती और अपने आने वाले बच्चे के सपने देखती रहती। और फिर वो दिन करीब आ गया जब मुझे अस्पताल ले जाया गया और मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दे दिया। इसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल था। हम घर वापस आए। मेरा आलीशान इस्तकबाल हुआ। मम्मी ने मेरा बहुत ख्याल किया और बच्चे को भी संभाला। असद भी मेरे ध्यान रख रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही 1.25 महीना पूरा हुआ और मैं पाक हुई तो असद ने मुझे खूबसूरत सी एक साड़ी ला के दी और कहने लगे तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें कहीं लेके जा रहा हूँ। उनकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैं भी खुश होकर पूरी तरह तैयार हो गई। साथ ही मैंने अपने बेटे हादी को भी तैयार कर दिया। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर से वापस लौटे और मेरे साथ हादी को भी तैयार देखा तो फ़ौरन ही कहने लगे, इसे क्यों तैयार किया है? ये मम्मी के पास रहेगा। मैंने असद से कहा, इतने दिनों बाद मैं पहली बार कहीं बाहर जा रही हूँ, तो हम अपने बच्चे को भी साथ ले चलते हैं। मगर असद ने साफ इनकार किया और खुद ही बच्चा उठा के मम्मी के हवाले कराए। ना जाने क्यों इस बात पे मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा था, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई क्योंकि वाकई में असद को काफ़ी अरसे से मैं वक्त नहीं दे पाई थी। मुझे लगा वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएंगे, डिनर करवाएंगे, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो मुझे एक दूर दराज रिजॉर्ट में ले गए और कहने लगे, आज की रात के लिए मैंने ये रिजॉर्ट बुक करवाया है। असद की बात पे मैं एकदम चौंक गई और कहा, असद, क्या हम सारी रात यहीं रहेंगे? लेकिन बच्चा तो मम्मी के पास है, मैंने तो उन्हें कुछ बताया भी नहीं। असद कहने लगे, मैंने मम्मी को बता दिया था। मैं कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, मगर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बेडरूम में ले गए और ये देख के मैं हैरान रह गई कि पूरा बेडरूम फूलों से सजा हुआ था। हर तरीके से तैयारी करके रखी गई थी। बिस्तर पे ही एक नाइटी पड़ी थी, कमरे में मोमबत्तियाँ चल रही थी। फूलों की खुशबू और रूम स्प्रे ने मिलके एक अलग ही माहौल बना दिया था। अपने शौहर की खुशी की खातिर मैंने भी अपना लिबास तब्दील किया और पूरी तरह तैयार हो गई। मैंने आईने में अपना अक्स देखा। असद ने जो लिबास मेरे लिए मुंतखब किया वो मेरी तबीयत के लिहाज से थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने सोचा शायद ये उसकी मुझसे दूरी का नतीजा है। उस रात को यादगार बनाना चाहता है। असद मेरे करीब आया। उसकी आंखों में वो शनासाई नहीं थी जो एक मोहब्बत करने वाले शौहर की होती है, बल्कि वहाँ एक फातिहाना चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। उसे मेरे गिर्द अपनी बाहें हमायल की और मेरे कान में सरगोशी की कि आज से हमारी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी जैसे इस बच्चे के आने से पहले थी, बल्कि इससे भी बेहतर। मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और कहा, असद, बच्चा तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसने तो हमारी खुशियों को मुकम्मल कर दिया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाथी आपके और मेरे बीच में कोई दीवार है? असद एक गहरी सांस ली और कहने लगा, तुम्हें नहीं पता मैंने इस दिन के लिए कितना सब्र किया है। इसकी वजह से तुम मुझसे कितने महीनों से दूर हो। अब आज वक्त आ गया है जब मैं अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी तरह मुकम्मल करूँगा। मुस्कुराते हुए वो जैसे ही मेरे करीब आया और वो लम्हात शुरू हुए जिनका वो महीनों से इंतज़ार कर रहा था, तो अचानक मेरे पूरे वजूद में दर्द की एक ऐसी लहर उठी कि मेरी चीख निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म को खंजर से काट दिया हो। मैं तड़प के उससे दूर हुई और सिसकियाँ लेने लगी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। अब वो दर्द इतना शदीद था कि मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैंने रोते हुए असद से कहा, असद, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। शायद अभी मेरा जिस्म पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, या शायद टाँके अभी कच्चे हैं। आप प्लीज़ दूर हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत दर्द हो रहा है।
लेकिन असद के चेहरे पे हमदर्दी का एक तासुर तक ना उभरा। वो दोबारा मेरे करीब आया और गुस्से से मेरा बाजू पकड़ के कहने लगा, ये सब तुम्हारा वहम है। अब तो हादी को पैदा होके भी 40 दिन हो गए। तुम्हारे टांके अब तक बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे। मैंने डॉक्टर को इतनी बड़ी रकम इसलिए नहीं दी थी। उसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर शशदर रह गई कि डॉक्टर को रकम देने का क्या मतलब, और परफेक्ट करने से उसकी क्या मुराद है। मैंने दर्द से कराहते हुए कहा कि असद, आप क्या कह रहे हैं? मुझे वाकई बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन वो एक जनूनी की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मेरी सिसकी और मेरी इल्तिजा उसके शोर में दब के रह गईं। वो बार बार मुझे डांट के चुप करवा देता और कहता, उसे बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत अरसे बाद उसे मेरी कुर्बत नसीब हुई है। कभी वो ये कह के मुझे मुतमईन करने की कोशिश करता कि बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे के करीब आए हैं, इसीलिए मैं खौफजदा हो रही हूँ और मुझे डर लग रहा है। मगर सच कहूँ तो वो रात मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। मैं सुबह तक दर्द से तड़पती रही और मेरा शौहर अपनी जनूनी ख्वाहिशों को पूरा करने के बाद मेरे बराबर सुकून की नींद सो रहा था, और मैं बिस्तर के एक कोने में दुबकी धीरे धीरे सिसक रही थी। तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म के अंदर कोई नोकीली चीज़ मुसलसल चुभ रही हो। लेकिन उस जिस्मानी दर्द से कहीं ज़्यादा बड़ा दुख इस बात का था कि मेरे शौहर ने मेरी तकलीफ़ समझने के बजाय और मुझे वक़्त देने के बजाय सिर्फ़ अपनी ख़्वाहिशें पूरी की। जैसे मैं कोई बेजान वजूद हूँ, जिसके कोई एहसासात नहीं होते। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असद के लिए मैं एक जीती जागती इंसान से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी और लज़्ज़त का एक ज़रिया हूँ। वो शख़्स जो अस्पताल में मेरी तकलीफ़ पे तड़प रहा था, जो नर्सों को पैसे बाँट रहा था, वो दरअसल मेरी सेहत के लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली अय्याशी के लिए खुश था। मुझे अपनी फुप्पो की बातें याद आने लगीं कि अमीर मर्द सिर्फ अपनी ज़ात के असीर होते हैं। मैंने सारी रात तड़पते हुए गुजारी और असद के खर्राटों की आवाज़ मेरे ज़ख्मों पर नमक पाशी करती रही। मुझे लग रहा था जैसे मेरा वो मान टूट गया जिसमें मुझे बड़ा नाज था। मैं बार बार अपने बेटे हादी के बारे में सोच रही थी, जो उस वक्त मम्मी के पास होगा और यहाँ उसका बाप अपनी हवस की खातिर उसकी माँ को अधमुआ कर चुका था। ऐसे ही सुबह हो गई थी। सुबह असद ने आंखें खोली और बड़े इत्मीनान से मेरी तरफ देख के मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो मैंने बेख्तियार अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी नज़रों में एक लम्हे के लिए हैरत आई, लेकिन फिर वो लापरवाही से बोला, क्यों परेशान हो रही हो? बहुत दिनों बाद हम करीब आए हैं, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा दर्द हुआ है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। असद ने बड़ी बेनियाजी से कहा, जैसे उसे मेरे कर्ब का अंदाज़ा ही ना हो। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो एक बार फिर दर्द की टीसें उठी। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर बस यही कहा कि अब घर चलते हैं। असद की आंखों में अभी भी वही हवस बाकी थी जो मेरे साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता था। उसने दोबारा मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर करीब आना चाहा, मगर मैं बुरी तरह घबरा के पीछे हट गई और लरजती आवाज़ में कहा कि अब मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे बस घर जाना है। मेरी उस अचानक बेरुखी पे असद का चेहरा एकदम बदला। उसे शायद अपनी अना पे चोट लगती महसूस हुई, लेकिन मेरी हालत देख के वो खामोशी से उठा और मुझे लेके वापसी के लिए निकल गया। मैंने सारा रास्ता उससे कोई बात नहीं की। मेरा जहन इन सवालों में उलझा हुआ था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया जो मुझे इतनी अजियत हो रही है। हमारी शादी को 3 साल होने वाले थे और उन 3 सालों में हमारे दरमियान कितनी ही बार का ताल्लुक कायम हुआ, लेकिन मुझे कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई जैसे गुजरी रात हुई। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था जो मेरी रूह में उतर रहा था। घर पहुंचते ही मैं सबसे पहले मम्मी के कमरे में गई और मैंने जल्दी से हादी को अपनी गोद में लेके उसे अपने सीने से लगा लिया। उस मासूम के लम्स से मेरी तकलीफ में कुछ कमी आई। मैं उसे लेके अपने कमरे में आ गई, लेकिन वो दर्द मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। हादी अब सुकून से सो रहा था और मैं भी उसके साथ ही लेट गई, लेकिन उस शदीद जिस्मानी और जहनी तकलीफ की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदलती रही। मुझे लग रहा था शायद डिलीवरी के बाद ये सब नॉर्मल है और पहली बार में ऐसा ही दर्द होता होगा, लेकिन फिर एक खौफ भी सता रहा था कि कहीं कोई अंदरूनी पेचीदगी तो नहीं जिसकी वजह से मुझे ये नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ हो रही है। क्या मुझे एक बार डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवा लेना चाहिए? लेकिन फिर मैंने खुद ही अपना सर झटक दिया कि शायद सब ठीक ही कह रहे हैं। हम इतने अरसे बाद एक दूसरे के करीब आए हैं, इसलिए मुझे जिस्मानी तौर पे ये बोझ महसूस हुआ होगा। सारा दिन बस यही सोचते हुए और ख़ुद को दिलासा देते हुए गुजर गया। मैंने दर्द से निजात के लिए खुद ही एक पेन किलर ले ली, लेकिन उससे भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क न पड़ा।
मुझे लगा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। फिर अगली रात आई और असद एक बार फिर बच्चे को मम्मी के कमरे में छोड़कर दीवानावार मेरे नज़दीक हुए। मैंने लाख कोशिश करके खुद को जहनी तौर पे संभाल लिया कि अब शायद वैसा दर्द नहीं होगा, क्योंकि एक बार हम मिल चुके थे और मेरा जिस्म अब इसका आदी हो चुका होगा। लेकिन मेरी ये सोच गलत साबित हुई। उस बार भी जब वो मेरे पास आई तो मेरा हाल बेहाल हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जख्मों को किसी ने दोबारा उधेड़ दिया हो। इतनी तकलीफ़ मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी, जितनी उस लम्हे हो रही थी। मेरा दम घुटने लगा और मैं तड़प रही थी, मगर असद ने मेरी हालत का ज़रा बराबर भी ख्याल ना किया और अपनी ख्वाहिश की तकमील में मगन रहा। वो मेरे आंसुओं और मेरी सिसकियों से बिल्कुल बेनियाज था, जैसे उसके सामने कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि कोई खिलौना रखा हो। उसने अपनी अना अपनी ज़रूरत को मुकद्दम रखा, और जब वो फारिग हुआ तो उसे मेरी तकलीफ़ से कोई सरोकार नहीं था। वो बस अपनी तस्कीन पा के सकून की नींद सोने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया, जबकि मैं अंधेरे में छत को घूरती रहती और सोचती रहती कि क्या मोहब्बत का अंजाम यही होता है कि इंसान दूसरे के वजूद को रोन डाले। वो सब कुछ जो गुजरे 3 सालों में बिल्कुल नॉर्मल था, वो अचानक ही इतना भयानक ख्वाब कैसे बन गया? यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था। अगले दिन असद मामूल के मुताबिक ऑफिस चले गए और मैं बड़ी मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। बच्चे को संभालना मेरे लिए एक अजाब बन गया। मम्मी ने जब मेरी यह हालत दी तो फ़ौरन मेरे करीब आई और पूछने लगी, खैर तो है बेटा, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उन्हें क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ, लेकिन अब ये दर्द मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा था। इसलिए मैंने कुछ हिचकिचाते हुए और नज़रें झुका लीं। दबे लफ्ज़ों में उन्हें अपनी इस तकलीफ़ के बारे में बताया जो मुझे असद के करीब आने पे हो रही थी। मम्मी खुद एक तजर्बाकार खातून थी। मेरी बात सुन के वो एकदम परेशान हो गई और कहने लगी, ये नॉर्मल बात नहीं है। हाँ, डिलीवरी के बाद जब मियाँ बीवी एक तवील वक्फे के बाद मिलते हैं तो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट या परेशानी तो समझ आती है, लेकिन इस तरह का शदीद दर्द होना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं। मैं तुम्हें अभी किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मम्मी ने मशवरा दिया कि हम उसी डॉक्टर के पास चलते हैं जिसने तुम्हारा केस किया, ताकि वो बेहतर समझ सकें। लेकिन मैंने असद को इस बारे में कुछ नहीं बताया और मम्मी के साथ चुपचाप अस्पताल चले गई। इत्तेफाक से वो डॉक्टर जिसने मेरी डिलीवरी की वो उन दिनों छुट्टियों पे थी, इसलिए हमने दूसरी गायनाकोलॉजिस्ट की स्लिप बनवा ली। उस डॉक्टर का रवैया बहुत संजीदा और पेशा वराना था। उसने मेरा मुआयना किया और मुआयने के दौरान उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे पूछा, क्या आपने डिलीवरी के वक्त डॉक्टर को कोई ख़ास हिदायत दी थी? मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। फिर उसने मेरी सास की तरफ देखा और पूछने लगी, क्या आपके शौहर ने डॉक्टर से कोई अलग से बात की थी? मैं हैरान हुई और कहा, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे शौहर डॉक्टर से बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उनके दरमियान क्या बात हुई इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आपके शौहर ने डॉक्टर से कह के आपके जिस्म के साथ एक संगीन जुर्म किया है। उन्होंने आपको एक ऐसा इजाफी टांका लगवाया है जिसे मेडिकल की ज़ुबान में हस्बैंड स्टिच कहा जाता है। ये टांका सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि मर्द की जिनसी तस्कीन को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसकी कीमत औरत को उम्र भर की अजियत और दर्द की सूरत में चुकानी पड़ती है। और चूंकि इसमें आपकी रजामंदी शामिल नहीं, इसलिए मैं इसे जुर्म का नाम दे रही हूँ। डॉक्टर का ये इंकशाफ एक ऐसा भयानक सच था जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी, और मेरी सास की भी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा वो शौहर, जिसे मैं बहुत ही नेक, शरीफ और मोहब्बत करने वाला समझती थी, दरअसल एक ऐसा दरिंदा है जिसने अपनी हवस की खातिर मेरे जीते जागते वजूद को एक बेजान मशीन में बदलने की कोशिश की। मेरी सास को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो बार बार डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर साहिबा, आपको गलत फहमी हुई होगी, मेरा बेटा ऐसी हरकत क्यों करेगा? वो तो अपनी बीवी का दीवाना है। इन दोनों की पसंद की शादी है। मेरे बेटे ने हमेशा मेरी बहू को पलकों पे बिठा के रखा है। आप एक बार फिर चेकअप करें। हो सकता है डिलीवरी के दौरान कोई पेचीदगी हुई हो और गलती से ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन डॉक्टर ने नहायत संजीदगी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, ये कोई इत्तेफाक या गलती नहीं। ये टांका बाकायदा सोच समझ के लगाया जाता है जब कोई ख़ास तौर पर इसकी फरमाइश करे और इसके लिए भारी रकम अदा करे। और जैसे कि आपकी बहू की रजामंदी इसमें शामिल नहीं, इसीलिए ये जुर्म है, क्योंकि ये इजाफी टांका औरत के लिए दायमी अजियत का बायस बनता है। डॉक्टर की ये बातें मेरे कानों में सीसा उंडेल रही थी। मुझे हसरत का वो बार बार डॉक्टर के पास जाना, वो पैसे देना, वो हस्पताल में फातिहाना मुस्कुराहट, सब कुछ एक एक करके याद आने लगा। मेरा वो शौहर जिसकी मोहब्बत की मैं मिसालें दिया करती थी, वो इतना गिर सकता है कि अपनी लज्जत के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये सोच के ही मेरी रूह फना होने लगी।
मम्मी का चेहरा भी सफ़ेद पड़ चुका था। वो जिस बेटे पे नाज करती थी, आज उसकी असलियत एक अजनबी डॉक्टर के सामने खुल के आ गई। मैं साकित बैठी डॉक्टर के चेहरे को देख रही थी और मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि असद ने मेरे साथ ये क्यों किया। क्या मेरी मोहब्बत उसके लिए काफ़ी नहीं थी जो उसने मुझे इस तरह इस्तेमाल करने का सोचा। मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बस मम्मी का हाथ थामा और अस्पताल से बाहर निकल आई। मेरा एतबार रेजा रेजा हो चुका था। मेरी सास घर के रास्ते में वो मुसलसल मुझे समझाती रही कि बेटा तुम परेशान ना हो, मैं खुद असद से बात करूंगी, हम किसी दूसरी अच्छी डॉक्टर से ये टांका ख़त्म करा देंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये ज़ख्म तो शायद ठीक हो ही जाए, मगर उस एतबार का क्या करती जो चकनाचूर हो चुका था। जिस्म का ज़ख्म भर भी जाता तो मेरी रूह पे लगा वो गहरा ज़ख्म कैसे ठीक होता जो असद ने मुझे दिया था। घर पहुंचकर मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मम्मी बार बार दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन मेरा दिल किसी से बात करने को नहीं चाह रहा था। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी कि जिस शख्स के लिए मैंने अपनी हस्ती मिटा दी, उसने मुझे महज एक इस्तेमाल की चीज़ समझा। शाम को जब असद वापस लौटे तो उनके चेहरे पे वही मसनूई मुस्कुराहट थी। वो सीधे मेरे कमरे में आए और हस्बे मामूल मेरे करीब बैठ के मुझसे लाड जताने लगे। लेकिन इस बार मैंने उन्हें खुद से दूर धकेल दिया और सीधा उनकी आंखों में देख के पूछा कि असद, तुमने अस्पताल में डॉक्टर को पैसे दे के मेरे साथ वो सब क्यों किया? तुमने मुझे इजाफी टांके क्यों लगवाए? मेरी बात सुन के पहले तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकली। उनका रंग फ़क हो गया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि सच खुल चुका है तो उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के बजाय एक अजीब सी बेहिसी छा गई। वो बड़े आराम से कहने लगे कि मैंने जो कुछ भी किया वो हमारे रिश्ते की बेहतरी के लिए किया। मैं नहीं चाहता कि बच्चा होने के बाद हमारे दरमियान वो पहले वाली बात न रहे। मैं तुम्हें पहले जैसा देखना चाहता था। असद की इस मंतक ने मेरा कलेजा चीर के रख दिया। मैंने चिल्ला के कहा, असद मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी कोई जागीर नहीं कि तुम अपनी पसंद के मुताबिक मेरे जिस्म की तराश खराश करवाते रहो। तुम्हें मेरी तकलीफ नज़र नहीं आई? असद ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है, लेकिन देखो अब मैं कितना खुश हूँ। क्या मेरी खुशी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ रह रही हूँ जो जहनी तौर पर बीमार है और जिसकी मोहब्बत सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है। उस वक्त मम्मी भी कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने असद को ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। तुमने एक औरत की इज्जत नहीं की, बल्कि अपनी बीवी को अजियत देकर अपनी हवस पूरी की। असद शर्मिंदा होने के बजाय अपनी सुर्ख आंखों से मुझे देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसने कोई जुर्म नहीं बल्कि मुझ पर एहसान किया। उसने मम्मी की तरफ देखा और बड़े कड़वे लहजे में बोला, आप लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। ये सब आम बात है, आजकल के दौर में लोग ऐसा कराते हैं ताकि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर ना हो। लेकिन मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने अपना बैग उठाया और उसमें हादी की ज़रूरत का सामान डालने लगी। असद ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोकने की कोशिश की और गुस्से में पूछा कि ये क्या तमाशा है, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं इस घर में एक लम्हा नहीं रहूंगी जहाँ मेरी हैसियत एक इंसान की नहीं बल्कि एक खिलौने की है। असद चिल्लाने लगा कि तुम इस मामूली बात पे मेरा घर छोड़ के जाओगी। मैंने पलट के उसे देखा और कहा, ये तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, लेकिन मेरी रूह छलनी हो गई है। तुमने डॉक्टर को पैसे दे के मेरे जिस्म का सौदा किया। अब मैं तुम्हारी जहनी बीमारी का बोझ नहीं उठा सकती। मम्मी ने आगे बढ़ के असद को रोका और मुझसे कहा, बेटा तुम क्यों जा रही हो? मैं इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। मगर मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, अब सब कुछ फिर से कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। मैं आपके बेटे को माफ़ नहीं कर सकती। मैं हादी को लेके अपने मैके पहुँच गई। जब अम्मा और बाबा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा और मेरी हालत देखी तो वो परेशान हो गए, लेकिन मैंने उन्हें फौरी तौर पर सब कुछ नहीं बताया। बस यही कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। अगले कई दिनों तक असद ने मुझे दर्जनों फ़ोन किए, मैसेजेस किए, यहाँ तक कि मेरे घर के चक्कर भी काटे, लेकिन मैंने उससे बात करना तो दूर उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं किया। मेरी खामोशी उसे पागल कर रही थी, क्योंकि अब उसे वो लज्जत मैसर नहीं थी जिसके लिए उसने इतना बड़ा गुनाह किया था। एक हफ्ते बाद मैंने हिम्मत जमा की और अपने बाबा को सब सच सच बता दिया। बाबा का पारा चढ़ गया। वो तो असद का खून करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैंने उन्हें रोका और कहा, नहीं बाबा, उसे मैं ऐसी सज़ा दूंगी कि अपनी मर्दानगी में मातम करेगा। मैंने सबसे पहले उस डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जिसने मेडिकल एथिक्स की धज्जियां उड़ाई। मैंने वकील के ज़रिए उस अस्पताल और उस डॉक्टर को लीगल नोटिस भेजा जिसमें उस संगीन जुर्म का जिक्र था। डॉक्टर तो नोटिस मिलते ही घबरा गई। उसे अपना लाइसेंस मुअत्तल होने का खौफ हो गया और उसने असद के तमाम मैसेजेस और वो वॉइस नोट सबूत के तौर पे दिखा दिए जिनमें असद ने उसे उस काम के लिए उकसाया था और पैसों की लालच दी थी। ये सबूत मेरे पास आ गए तो मैंने असद को अपने घर बुलाया। वो सीना चौड़ा करके चला आया
उसे लगा शायद मैं अब मान जाऊंगी, लेकिन जब मैंने वो तमाम सबूत उसके सामने रखे तो उसके औसान खता हो गए। मैंने उससे कहा, असद, अब तुम अदालत जाओगे, और ना सिर्फ तुम बल्कि वो डॉक्टर भी जेल जाएगी। असद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मेरे पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा के माफ़िया मांगने लगा कि मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी, मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे हकारत से देखा और कहा, तुम्हें मेरी तकलीफ़ का ख़्याल क्यों नहीं आया? अब तुम तड़पोगे असद, वैसे ही जैसे मैं उन रातों में तड़पी थी। मैंने उसे खुला का नोटिस थमाया और साथ ही उसके खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद और धोखाधड़ी का केस फाइल कर दिया। जब मैंने अपना इलाज करवा के खुद को उस अजियत से आज़ाद कर लिया, अब मैं अपने बेटे हादी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी हूँ, जहाँ कोई मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे छू भी नहीं सकता। मैंने साबित कर दिया कि औरत का जिस्म कोई मंडी नहीं, जहाँ मर्द अपनी मर्ज़ी से बोली लगा कर उसे तब्दील करवाते फिरें। मेरे शौहर को अदालत ने जुर्म साबित होने पे ना सिर्फ मुझे हर्जाना अदा करने का पाबंद किया, बल्कि उसे 6 महीने की सज़ा भी सुनाई। ये 6 माह असद के लिए किसी इबरत से कम नहीं थे, क्योंकि जिस माशरे में वो अपनी दौलत और मर्दानगी के नशे में चूर रहता था, वहाँ अब हर कोई उसे हकारत की नज़र से देख रहा था। उसकी गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और उसका वो गरूर जो आसमान को छूता था खाक में मिल गया। मम्मी ने भी अदालत में मेरा साथ दिया और अपने बेटे के उस घिनौने फेल पर मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने असद से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर लिया और अपनी जायदाद का वो हिस्सा जो असद के नाम था वो मेरे बेटे हादी के नाम कर दिया, ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज हो सके। मम्मी ने रिवायती सासों की तरह मेरे साथ जुल्म नहीं होने दिया, बल्कि मेरा साथ दिया और ये साबित कर दिया कि हमेशा औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती। कभी कभी दो औरतें मिलकर एक जालिम मर्द को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकती हैं। आप मुझे बताएं, क्या मैंने अपने शौहर के साथ जो कुछ किया वो ठीक है? क्या मुझे उसे सज़ा दिलवानी चाहिए थी या फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए था? अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मेरा दिल उसे माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं था, क्योंकि उसे मेरे भरोसे को चकनाचूर करते हुए मेरे वजूद को और मेरी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की। इज्जत सिर्फ गैर मर्द के हाथ में ही पामाल नहीं होती, बल्कि कभी कभी एक महरम रिश्ता भी आपको पामाल कर सकता है।